دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کا کارنامہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے سب سے بڑے ملٹری عہدے کا اعزاز۔ حکومت نے جنرل عاصم منیر کو ترقی دے کر فیلڈ مارشل بنا دیا۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے صدر سے ملاقات کر کے انہیں فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ کابینہ نے کہا جنرل عاصم منیر نے مثالی جرت عزم سے پاک فوج کی قیادت کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کر لیا گیا۔ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اعزاز قوم، افواج، خاص کر سول ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افراد پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد۔ وفاقی وزراء اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے بھی سید عاصم منیر کو مبارکباد دی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نکالنے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم کردار ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ کوئی شک نہیں، خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کا صحرا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کردار نبھایا، عہدے کے مستحق ہیں۔ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر اے آوائی فیملی کی جانب سے سید عاصم منیر کو دلی مبارکباد۔ اور پاک چین تعاون خطے میں امن و استحکام کا ضامن ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی چینی سفیر سے گفتگو، دفاعی تعاون، خطے کی صورتحال اور مشترکہ چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں۔ پاک فضائیہ کے مشرقی محاذ پر کارکردگی کو چینی سفیر نے سراہا، کہا پاک فضائیہ نے جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا۔ پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت متاثر کن ہے۔ پہلی ترجیح امن ہے لیکن پاکستان نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو، کہا ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی اہم چیز اس کا عزم اور طاقت ہے جو ہم نے دکھایا۔ دنیا پہلے ہی مسائل سے نابردآسماں ہے، ایسے میں کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیوں اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ اس وقت پاکستان اور چین امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ اس دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی روکنا ہے۔ پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ بھارت کا سینتاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ عالمی برادری نوٹس لے۔ نائب وزیر اعظم مساک ڈار کی چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ لیو ڈیان چاؤ کا کہنا تھا چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ وزارت خارجہ بیرون ملک جانے والے وفد کو بریفنگ دے گی۔ پاک بھارت تنازع کے مختلف سفارتی پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، ہنا ربانی کھر، شیری رحمان کو مدعو کر لیا گیا۔ جلیل عباس جیلانی، ڈاکٹر مصدق ملک بھی مدعو۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے عالمی سفارتی مہم پر روانہ ہوگا۔ پاکستان نے عرب ملکوں کو بھارتی جارحیت اور پاکستانی جواب سے آگاہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کی عرب گروپ کو تفصیلی بریفنگ۔ عاصم افتخار نے بتایا پاکستان نے یو این چارٹر کے تحت دفاع کا حق استعمال کیا۔ سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی یو این چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ ٹیکس چور کسی رعایت کے مستحق نہیں، ٹیکس دہندگان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایف بی آر کے امور سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا 70 برس کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات ضروری ہیں۔ ایف بی آر اور اس کے معاون اداروں کی ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وفاق نے سندھ حکومت کو دیگر صوبوں میں منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دیے ہیں۔ سندھ حکومت رحیم یار خان راول پنڈی میں ایس آئی یو ٹی ہسپتال بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں ایس آئی یو ٹی رحیم یار خان کے لیے 2 ارب
जबकि SIUT रावलपिंडी के लिए 1 अरब मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात बनाए जाएंगे। सिंध काबीना ने ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। गैर फिट कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। PTI ने इन हाउस तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। असद कैसर के बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की रिहाई के हवाले से मायूस नहीं, मुकदमात सियासी हैं, बहुत हो गया, अब अकल से काम लेना चाहिए। गजा में इमदादी सामान की बंदिश पर बरतानिया का बड़ा एक्शन। इसराइल के साथ नए तिजारती मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफीर की तलबी फैसले से आगाह कर दिया। वजीर खारजा डेविड लेमी कहते हैं, गजा पहुंचने वाली इंसानी इमदाद पर नाकाबंदी जालिमाना है। भूख से लाखों लोगों के मरने का खतरा है। ये एक घिनौना अमल है। नाकाबंदी खत्म न करने पर मजीद कार्रवाई की वार्निंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसराइल को सख्त पैगाम भेज दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार किया, गजा में जंग बंद करो वरना अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओगे। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम करते हैं। गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारत का इल्जाम इबादत गाहों को निशाना बनाने के नाकाबिल कबूल इक़दाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के जरिए वीज़ा फ्री रसाई फराहम करता है। भारत के टुकड़े करने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। खालिस्तान बनाकर मकबूजा जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे। सरबराह आसिफ फौज जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ेंगे। हिंदुत्व और RSS की सोच ने भारत को तबाह कर दिया। खालिस्तान तहरीक जोरों शोर से जारी है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन सिखों के साथ है। मोदी सरकार की घबराहट और इब्बतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री कहते हैं, पाक भारत जंगबंदी 2 तरफा थी, इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं। भारतीय पार्लियामान ने सीज फायर पर अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी। अपोजिशन ने सवाल किया, मोदी सरकार ने दुनिया को सीज फायर पर अमेरिकी मुदाखलत का तासुर क्यों देने दिया? ट्रंप के सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही? विक्रम मिस्री ने कहा, अमेरिकी सदर ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही तवज्जो का मरकज बनना चाहा। विक्रम मिस्री ने एतराफ किया, पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला। अपोजिशन के चीनी हथियारों के इस्तेमाल पर सवालात। मोदी सरकार ने मौजू बदल दिया। हाजी पीर और स्कर्दू छीन लेने की बातें जबानी जमा खर्च निकली। दुश्मन को तबाह करने के दावे करने वालों को अपना आप बचाने के लिए मिन्नतें करना पड़ गईं। भारत के कौमी सलामती उमूर के माहिर भरत कर्नाड ने मोदी की ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टमार्टम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को नाकिस हिकमत अमली और राफेल को ओवर हाइप जंगी तैयारा करार दिया। कहा, भारत ने राफेल खरीदे जिनका वो मुहारत से इस्तेमाल नहीं जानता। पाकिस्तान ने खिते में अपनी बर्तरी साबित की। फ्रांस में तनाव बढ़ गया। पेरिस का नई दिल्ली को राफेल के सोर्स कोड देने से इनकार। भारत ने राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन दिफाई कंपनी से सोर्स कोड तक रसाई मांगी थी। तुर्क मीडिया का कहना है, भारत अपने तैयार करदा मिसाइलों को राफेल का हिस्सा बनाना चाहता था। डसॉल्ट कंपनी ने एतराज कर दिया। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज पर शिकस्त। ईरान के शहर करज में वेस्ट एशिया बेसबॉल के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की जीत। कौमी टीम ने रिवायती हरीफ को 14-1 से आउट क्लास किया। पाकिस्तान का फाइनल में कल फलस्तीन से मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने एशियन चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। कामयाबी हालिया जंग के शहदा के नाम कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाक बांग्लादेश सीरीज के तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बांग्लादेश बोर्ड के सदर के दरमियान मुलाकात के बाद फैसला हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले 5 T20 मैचों की सीरीज शेड्यूल थी। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता साल दिसंबर में 28 मई को आम तातील की फहरिस्त में शामिल किया था।
सिंध हुकूमत ने 28 मई को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 126 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर घंटे एक बच्ची और खातून शहीद हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है इसराइल ने 20 लाख अफराद को कहत के दहाने पर पहुंचा दिया। नूर मुकदम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मुकदमे में जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के केस में जाहिर जाफर बरी, अदालत ने चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। वजीर आला पंजाब ने अजला के तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फैसलाबाद में 6,416 एकड़ अराजी वागुजार करा ली गई। फैसलाबाद घंटा घर के गिर्द तजावुजात खत्म करके बाजारों को कुशादा कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं। शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक कारें ला रहे हैं। पंजाब के हर जिले में रेहड़ी बाजार बनाए जाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। वजीर आला ने फेडरल PSDP में बलूचिस्तान की तरजीहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़ और 100% एलोकेशन जरूरी है। वफाक और बलूचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। एहसन इकबाल की बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इकदाम किए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब मुतासरा लाखों खानदानों के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ ख्वाब था। सिंध हुकूमत ने मुसलसल मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे से इसे हकीकत का रूप दिया। 8 लाख से ज्यादा घर मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुके। PSL का पहला मरहला खत्म, 2 टीमों की छुट्टी, 4 टीमें बढ़ाएंगी ट्रॉफी की जानिब कदम। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान प्ले ऑफ में जाने में नाकाम। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और लाहौर ने जगह बनाई। मेगा इवेंट के पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद और कोयटा की टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। पहले एलिमिनेटर में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। जो हारा वो घर जाएगा। फाते टीम क्वालिफायर हारने वाली टीम से टकराएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तस्वीर और तबसरे। आज अदाकार फाइक खान बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सिब्बी, चोलिस्तानी और साहिवाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। सिब्बी के 8 फीट के चांद बैल ने सबको दीवाना कर दिया। और सादिकाबाद के शहरी का घर आजाद परिंदों का मेहमान खाना बन गया। शहरी ने घर के सहन में परिंदों के लिए बूफे लगाया हुआ है। परिंदे आते हैं, दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं।